Jai Shri Mahakal, how is everybody? Before moving to this, there is something. Last video में हमने, I think last time हमने Jupiter transit किया था. We did Jupiter transit, right? There is something very important about Jupiter transit that we missed. Which I guess you should know. 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है तो मैं बता देता हूँ. What is Jupiter? What is Jupiter in one word? Last time आपने बताया था. Again I will expect कि आप राइट. Opportunity. Jiva, wisdom. Right? Jupiter is wisdom. Jupiter is Jiva. Jupiter is also decisions. Whatever decisions you take is because of the Jiva. जीवात्मन डिसीजन लेती है और उस डिसीजंस के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के आउटकम्स आते हैं. राइट? एवरीबडी एग्री ऑन दिस? अब सवाल ये आता है कि डिसीजन मेकिंग में हम जुपिटर की हेल्प कैसे लें. डिसीजन मेकिंग में हम जुपिटर की हेल्प कैसे लें. हर कोई सोचता सर मेरे पास जॉब स्विच करने की ऑप्शन है, मैं क्या करूं. वाई डू यू गो टू एस्ट्रोलॉजर? हु इज एस्ट्रोलॉजर? गुरु. यू गो देयर टू टेक सम डिसीजन, राइट? इफ somebody is coming to me, they want to take some decision, that's why they come to me and ask me a question. And when I give them the answer, they fully trust me that okay, sir ने बोला जॉब स्विच कर ले, जॉब स्विच कर ले. Why? Because they trust on Guru. They trust on Jupiter. You go to your gurus and ask the questions. Ask the query and your answer is given by them. But what is the astrological way to use it for yourself? आप as an astrologer कहाँ जाओगे? आप तो खुद गुरु हो. Would you come to me every time? Do you think I every time go to my guru? How could you use this guru? That is very important. And even if you are not an astrologer, even for normal people, they can use this technique of guru which can help them grant wisdom and take decisions. Got it? Let me tell you how. How many houses are there in Kundali? Not houses. Houses is not the right word. How many bhavas? 12. 12 bhavas. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do you know what these bhavas represent? सबको पता है? जेल कौन सा घर है? 12th house. और प्रिजन कौन सा घर है? What's the difference between jail and prison? Same ही है ना. One is physically prison, and then the jail is like having the feel of being in jail or being prisoned. आपको पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया. लेकिन आपको कोर्ट ने जब भेजा, कोर्ट जेल नहीं भेजता, कोर्ट प्रिजन में भेजता है. पुलिस वाले आपको जेल लेके जा सकते हैं, जेल से फिर कोर्ट लेके जा सकते हैं, कोर्ट फाइनली आपको प्रिजन में पहुंचाती है. कोर्ट वापस जेल में नहीं भेजती. जेल में भेज सकती है अगर जेल रिमांड दे दे, पुलिस रिमांड दे दे, काइंड ऑफ थिंग. सो अब बताओ जेल कौन सा घर है और प्रिजन कौन सा घर है? Jail is first house. Prison is 12. Jail is 6th house. Okay? Prison is 12th house.
जेल में आप चक्की नहीं पीसते, प्रिजन में पीस सकते हो। चलो ये तो मैं जस्ट एक फिलोसफिकल बात होगी, आगे से आगे चली जाएगी। बट या हाउ कैन वी यूज दीज भावाज इज द क्वेश्चन। इट इज वेरी इजी। डू यू नो द प्लेसेज एसोसिएटेड विद दिस भावाज? एवरीबडी नोज द प्लेसेज that are associated with What do these you, bhavas. what do you mean by places? Places मतलब कौन सी places हैं? What is first house? If you have to go to first house, where would you go? Look, I mean, Like, where would you go to activate I'm, this house? If you have to go to second house, how would you activate your second house? Where would you go? I, I think, are you referring it to like when you mentioned in the Vedic astrology, like the Taurus is denotes as a city or something? See, Maybe you need to that's my explain it point. to I us. wanted to share this thing because this is really important. And you Something guys, like Astro Vastu. no, it's not Astrovastu. It is very basic. I don't know if I have taught you or not. I'm sorry if I haven't taught you and you were part of the course. I'll try to make it better in the upcoming course. But let me tell you what it is. So, for example, first house is your domain. Okay, what is your domain? Your room in the house. Your room in the house. It's not your house, but you have a room in your house. Okay, you could be living in your parents' house, in your husband's house, in your wife's house, in your kid's house, but you have your room in the house. That is your domain. That is first house. First house is your room, your private area. जहां पर आपका राज है। अब ये मेरा कमरा है, ये मेरा राज है, ठीक है। मैं इस कमरे में कोई भी चीज कैसे भी रख सकता हूं। I have no issues. So first house is your domain. You need to remember this, okay? Second house is banks. Second house is temples. Second house is temple. Second house is bank. Second house is a storeroom of your house. जहां पर आप चीजें स्टोर करते हो। Accumulation. Getting the point? Accumulation. Your almirah. Almirah जहां आप सामान भर रहे हो। Locker of your house. That is second house. Just for reference. But major it is दो चीजें, एक स्टोर और एक टेम्पल। टेम्पल याद रख लो, एक चीज कोई भी याद रख लो, आपको हेल्प हो जाएगी। What is third house? What is third house? Third house is your neighbor. Third house is the road in front of your house. अब कहते हैं थर्ड में राहु, घर के सामने खंबा है जी। हाँ जी है जी। घर के सामने बिजली का बोर्ड लगा है। हाँ जी लगा है। वो कैसे होती हैं वो प्रेडिक्शंस, कभी सोची हैं? ऐसे होती हैं वो प्रेडिक्शंस, ठीक है। फोर्थ हाउस, ये शॉर्ट ट्रेवल भी है, शॉर्ट रोड है, बेसिकली घर के सामने की सड़क है। जो भी घर के आपके सामने होगा वो आपको यहां से दिखेगा कि वो चीज आपके घर के सामने है। You can find it in your charts. You will find something similar in front of your house according to the placement of this planet or this lord with some other planet. फोर्थ हाउस क्या है? रिवर्स हैं, वाटर फ्रंट्स हैं, मम्मी का कमरा है, फार्म लैंड्स हैं, बीज, जहां बीज उगता है। दो तीन चीजें समझ में आ गई। मैं बहुत सारी बता सकता हूं, मैं दो तीन बता रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस इज एजुकेशन प्लेस, दैट इज स्कूल्स, दैट इज प्लेग्राउंड्स, दैट इज लाइब्रेरीज, दैट इज कम्युनिटी हॉल्स। फिफ्थ हाउस एंटरटेनमेंट, दैट इज सिनेमा हॉल, प्लेवे स्कूल, बच्चों का स्कूल। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर फिफ्थ हाउस, ओके। नाउ व्हाट इज सिक्स्थ हाउस? सिक्स्थ हाउस इज जेल। सिक्स्थ हाउस एक्चुअल में जेल है, या फिर सिक्स्थ हाउस इज रोड गोइंग टूवर्ड्स योर एनिमीज हाउस।
यही पहुंचाएगा ना आपको एनिमी तक. So that's a road going towards your enemy's house. 6th house is also not hospital जहां पर आपको रहना पड़े, लेकिन अदर प्लेसेस लाइक स्कैनिंग सेंटर्स हो गए. ठीक है, अब स्कैनिंग सेंटर में आपको रहना थोड़ी पड़ता है, कोई एडमिट थोड़ी करता है आपको स्कैनिंग सेंटर में. ब्लड बैंक हो गया, कोई एडमिट थोड़ी करता है वहाँ पे आपको. ठीक है, या कोई ब्लड की लैब्स हो गई, वहाँ पर भी आपको कोई एडमिट नहीं करता है. सो दैट काइंड ऑफ प्लेस. और it is nearest village from your home. This is your partner's domain. यानी कि अगर आपके कोई पार्टनर है, अभी आप मैरिड नहीं हो, उनका कोई पर्सनल कमरा है, या आपका और आपके पार्टनर का जो शेयर्ड स्पेस है वो भी यही है. ठीक है, इनफैक्ट ये भी शेयर्ड स्पेस होता है, लेकिन ये पार्टनर के साथ शेयर स्पेस नहीं होता. जैसे कि आपके घर के सामने की सड़क आपकी अकेले की नहीं है, वो सामने वालों की भी है, साथ वालों की भी है, जितने भी लोग उस सोसाइटी में रह रहे हैं, उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, सबकी है वो. सो दिस इज ऑल्सो शेयर्ड स्पेस. ओके, दिस इज योर पार्टनर्स डोमेन. दिस इज योर बिजनेस एरिया. wherever you do business, that is this area. What is 8th house? 8th house is शमशान भूमि. 8th house is cemeteries, जहाँ पर दफनाते हैं, जलाते हैं, वो वाला एरिया. या कोई रिसर्च सेंटर जहाँ कोई बहुत गहरी रिसर्च हो रही है, that is also 8th house. Okay, what is 9th house? 9th house is spiritual places. कोई मेडिटेशन रिजॉर्ट हो गया जी. ऑल्सो रिलीजियस प्लेसेस, कोई बहुत बहुत प्राचीन. अब इस टेम्पल और इस टेम्पल में क्या फर्क है? टेम्पल दोनों है. ये आपके घर का टेम्पल है, आपके घर के नियर का टेम्पल है. ये वो टेम्पल है जो सिद्ध स्थान है. कोई ज्योतिर्लिंग हो सकता है, कोई शक्तिपीठ हो सकते हैं. So this is Siddha temple, the temple which emerged by itself. And this is the made temple, बनाया गया temple. Okay, this is also your father's room, your father's domain. Father का office, you could have office of your father, right? This is government land. एनी गवर्नमेंट लैंड. गवर्नमेंट लैंड क्या क्या हो सकते हैं? कोर्ट भी हो सकता है, कचहरी भी हो सकती है, सुविधा केंद्र भी हो सकता है, पासपोर्ट ऑफिस भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है. एनी प्लेस विच इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट. ऑल्सो योर वर्क स्पेस, योर बिजनेस वर्क स्पेस, योर ऑफिस. समझ में आ रहा है? कुछ नया पता लग रहा है? ओके, व्हाट इज 11th? हाँ जी, कजोल जी. 7th हाउस भी बिजनेस एरिया, एंड ये वाला भी 10th हाउस भी. या ये सिर्फ बिजनेस है, ये जॉब वाला भी हो सकता है. ठीक है, अब अगर आप जॉब में हो, एंड अगेन दिस इज नॉट ओनली योर्स. बिजनेस में आपका पार्टनर भी इन्वॉल्व हो सकता है. ये सिर्फ आपका, इसमें कोई और इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत नहीं है. So if you own a business only by yourself, then it is this house. Okay. 11th is also shared resources. अब shared resources क्या हैं? आपके घर के बाहर बहुत बड़ा पार्क है, shared resource है. ठीक है, आपके घर के बाहर कम्युनिटी हॉल है, shared resource है. आपके घर के थोड़ा सा आगे जाके मैरिज पैलेस है, shared resource है. पूरा मैरिज पैलेस थोड़ी खरीदते हो आप कहते हो हाँ ठीक है, एक दिन के लिए हमें चाहिए. तो जो भी चीज आपको एक दिन के लिए चाहिए, बेसिकली रेंटेड थिंग्स, वेर एवर यू पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेंट टू एंटर एंड डू सम काइंड ऑफ वर्क, दैट इज 11th हाउस. ठीक है, इट कैन बी अ रेंटेड ऑफिस, इट कैन बी अ शेयर्ड मे बी स्विमिंग पूल. समझ लग गया ना आपको? अब आप जैसे मर्जी उसको जितना मर्जी बनाते रहो. 12th हाउस इज रूफ ऑफ योर हाउस. घर की छत 12th हाउस है.
अब जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, आपकी छत आपकी अकेली नहीं होती, छत शेड होती है, तो आपका 12वां घर खराब हो जाता है। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, जितने नीचे फ्लोर में रहेंगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। क्यों? उतने 12th हाउसेस बढ़ते जाएंगे। 12th हाउस क्या है? लॉस है। उतनी रूफ सिर पे बनती जाएंगी। सो वेन एवर यू ट्राई टू बाय अ फ्लैट और समथिंग, ट्राई टू गो ऑन टॉप। छत पे रहो, सबसे ऊपर रहो। वाई पेंट हाउसेज आर एक्सपेंसिव? दैट्स द रीजन। एंड आई होप यू नो, आपकी जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो नीचे की तरफ फ्लो करती है। जब आपको एकदम डर लगता है, शरीर ऐसे हो जाता है, और जब आप बड़े सुखी होते हो तो शरीर पूरे लाइट लाइट फील होता है। So when you live on the bottom, you take all the negative energy of the people living above you. And when you live on the top, you take all the positive energy of people that live under you. There are some things we'll someday discuss about living in flats and houses and what's the difference and how you can maintain it. But this is your roof, okay? And this is hospitalization. ये अब वो हॉस्पिटल नहीं है कि आप ब्लड टेस्ट करा के वापस आ गए। ये वो हॉस्पिटल है जहां आपको दाखिल होना पड़ेगा, जहां आपको 1 दिन 2 दिन ड्रिप लगेगी। इट्स गोना टेक सम टाइम। ये प्रिजन है। अब जेल से बंदा सुबह जाके शाम को आ जाता है, लेकिन प्रिजन से सुबह जाके शाम को आना थोड़ा मुश्किल है। एक बार कोर्ट ने भेज दिया तो थोड़े लंबे टाइम के लिए भेज दिया, तो वो जो भी टाइम के लिए भेजा वो यहां से देखते हैं। अब आते हैं गुरु की बात पर। नाउ यू हैव टू सी ट्रांजिट ऑफ गुरु, transit of wisdom. If it is transiting in your 12th house, go to your roof before taking any decision. अपनी रूफ पे जाओ, 15-20 मिनट सैर करो, सोचो, फिर डिसीजन लो। You will get right support there, you'll get right wisdom there because your guru is present there. If it is transiting in the 4th house, go sit near some water body before taking a decision. Talk out things with your mother before taking the decision. If it is in the 3rd house, घर के बाहर सैर करते करते शेड सड़क के ऊपर, फिर सोचो। 2nd house, go to temple. Just for examples, I'm gonna give you all of it. But ये बड़ी simple theory है. How can you use this guru? Transit तो हो गया, result तो आ रहा है, लेकिन how will you use it? हाँ जी, SD, you have any question? Yes, you were talking about getting on top of the roof and getting the decision. How about for the people who lives abroad, like, the house roof is sloped and tilted, so you don't have a chance to get on the roof. Yep. Definitely, you won't have a chance to go on the roof. This is open skies as well. जहां आसपास कुछ ना हो, ओपन स्काई हो, खाली मैदान, वहां जाओ, वहां जाके डिसीजन लो। हाँ जी काजोल जी। सर फर्स्ट हाउस में तो रूम में रहे अपने। या दैट्स योर प्राइवेट डोमेन। किसी से डिस्कस नहीं करना है डिसीजन लेने से पहले। इफ यू इन्वॉल्व अदर पीपल, योर डिसीजन विल गो रॉन्ग। It should be coming from you because the Jupiter is here. It's you that should be taking the decision now. ठीक है। उस टाइम पर अब मेरे पास क्लाइंट आते हैं, जुपिटर यहाँ ट्रांजिट करता होता है, मैं उनसे पूछता हूँ आपका दिल क्या कह रहा है, तो कहते हैं सर ये कह रहा है, कर लो। तो अगर वही खुद ही कंफ्यूज है तो? कंफ्यूज होना नहीं ना, वही तो रेमेडी है। यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज देयर, यू हैव टू टेक द डिसीजन। ओके। हाँ जी सुवेक्षा जी। सर अगर 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा, गो टू योर ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस में जाके करेंगे, बिकॉज अपना तो पर्सनल ऑफिस है नहीं। गवर्नमेंट ऑफिस चल जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस जाके कर सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट लैंड, अरे इतने पूडा के लैंड्स पड़े होते हैं, खाली लैंड पड़े हैं, वहां जाओ, वहां थोड़ी देर घूमो फिरो, दिमाग लगाओ, अपना डिसीजन लो। ओके, सो दैट्स हाउ you can take the help from the guru of the transit. This is the best way to seek help from a guru. Okay? Only if it is transiting here, go to an astrologer. You'll need somebody else's help. If it is transiting here, you'll need somebody else's help. If it is transiting here,
You will have to put efforts to reach the Guru, and then Guru will tell you what to do. Or you will again take the decision by yourself, but you will need Guru here because this is efforts house. Now, if on the other hand, अब मैं एक सीक्रेट और बता देता हूं, अगर गुरु से 6, 8 या 12 मंगल ट्रांजिट कर रहा होगा, उस टाइम आपको हेल्प मिलेगी ही नहीं. The Mars will block the help. And also, second from the Jupiter, अगर Mars ट्रेवल कर रहा होगा, तब भी हेल्प नहीं मिलेगी. उस टाइम पर भी आप हेल्पलेस हो जाओगे. You'll feel like यार मैं डॉक्टर के पास जाना तो है, बट टाइम ही नहीं लग रहा, सिचुएशन ही नहीं बन रही. हाँ जी, यस जी. Is it the transit Jupiter or the natal Jupiter? Transit. So transit Jupiter and transit Mars. Transit Mars, yes. Both of them are in transit. Both of them in transit. Actually, you can also take natal Jupiter and transit Mars and natal Mars and transit Jupiter. अब ये आपके उस पे है कि आप कैसे इसको लेते हो. मैंने आपको सिर्फ इशारा दिया है. So I hope you are clear about the places associated with each house, which is a very important and basic thing to know. अगर मैं कहूँ you have to visit your 4th house today, you should know that you have to go to your mom's room. You should know you have to go to some open sea or river. अब पानी भी 3 तरह के हैं, तीनों पानी डिफरेंट है. 3 तरह की आग है, तीनों डिफरेंट है. मैंने पढ़ाई हुई है एडवांस वाले में जिन्होंने किया है. The difference between all fires, all waters, all vayus. ठीक है. So whatever, this is the easiest way to seek help from the Guru. Okay. So even if you are talking to an astrologer and your Jupiter is in 12th house transiting, go to roof and talk to him. If you are discussing your case with some advocate, or if you are discussing your case with some CA, or if you are discussing your case with some doctor and it is in the 12th house, go to roof and talk. That will give you more understanding of things, more clarity of thoughts. ठीक है ना. अब आपने एडवाइस कहाँ देनी है? अब आप एज एन एस्ट्रोलॉजर हो. लो जी, अब आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपको किसी को एडवाइस देनी है. जहां जुपिटर है उसके ऑपोजिट हाउस में चले जाओ, वहां बैठकर एडवाइस देनी है. इसीलिए कहते हैं जुपिटर 10वें हो तो घर बैठ के काम करना चाहिए. ठीक है. उसके ऑपोजिट हाउस में बैठ के काम करो, जुपिटर सामने एक्टिव रहेगा, आपको फायदा देता रहेगा. अब जिन का गुरु यहां पर आया है अभी ट्रांजिट में, जिनका यहां पर जेमिनी साइन आता है, वो लोग घर पे बैठ के काम करो. दिस इज राइट टाइम. गुरु यहां आया है, शमशान जरूर जाया करो. you'll get the energy. अब 7th ही क्यों? You know the 7th is the completion of something. 7th will complete you. 7th is desire, 7th is energy, 7th is completion, 7th बहुत कुछ है. So first is a Shiva, 7th is a Shakti. If one is day, second is night, it has to be together. Only then they are completed. Otherwise they are not. तो जुपिटर यहाँ आया तो यहाँ बैठ के काम करो. स्कूल बैठो, कोई बच्चों के कम्युनिटी हॉल में बैठो. यहाँ आया कोई शेयर्ड स्पेस में बैठो, यहाँ भी आया कोई शेयर्ड स्पेस में बैठो. सो यू नो वेयर टू टेक योर कंसल्टेशन नाउ, वेयर टू टॉक विद योर क्लाइंट. नाउ व्हाट नॉट टू टेक. देयर आर सम काइंड ऑफ कंसल्टेशंस व्हिच यू शुड अवॉइड. कौन सी कंसल्टेशन नहीं लेनी है? Any idea? 8th फ्रॉम जुपिटर की कंसल्टेशन नहीं लेनी है 1 साल. यहां जुपिटर है, मैरिज रिलेटेड कंसल्टेशन बंद कर दो 1 साल के लिए. That will get you in trouble. Your predictions might not go well. यहां जुपिटर है, लॉन्गिविटी की कुछ नहीं बताना, कंसल्टेशन कुछ नहीं, जरूरत नहीं है. लॉन्गिविटी तो आपने वैसे भी नहीं सिखाई. इट्स नॉट जस्ट लॉन्गिविटी, इट्स ऑल्सो अदर थिंग्स. ससुराल पक्ष है ये आपका, ये आपके शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, आपकी वाइफ की वेल्थ है, आपकी अनअर्न्ड मनी है, आपकी एफडीआं हैं जो जिसके एफडी के ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट है.
बड़ा कुछ है ये। 8th हाउस एक चीज थोड़ी है। नहीं, मैंने कहा चलो मौका मिला बोल दो। चलो, समझे? तो 8th फ्रॉम जुपिटर अवॉइड कर देनी कंसल्टेशन, वो कंसल्टेशन नहीं लेनी अभी, ठीक है ना? चलो, ये तो एक पार्ट हो गया. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस. Now let's move to D60, which is the topic of today. What is D60 chart?